انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. بات چیت چل پڑی ہے اور انتہائی طاقتور شخصیت نے پیغام عمران خان کو پہنچا دیا ہے اڈیالہ جیل میں. اس حوالے سے ایک بہت بڑا کلیم، ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور عمران خان کو کچھ آفرز دی گئی ہیں. ان آفرز کے جواب میں عمران خان کے مطالبات بھی سامنے آ چکے ہیں اور اس پر پھر طاقتور حلقوں کا کیا جواب آیا، اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر اور ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو سامنے آئی ہے. اور عمران خان صاحب کی بنی گالہ منتقلی جو ہے اس کے حوالے سے جو بنی گالہ کے اندر سے ہمیں رپورٹ مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس پورے ایریے میں سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے. یہ سیکیورٹی کس موومنٹ کے پیش نظر بڑھائی جا رہی ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. کیا سیاسی بحران کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ آل شریف اور آل زرداری اس وقت تک، رات گئے تک ایک اور فارمولا تھا اور ان کی بات چیت چل رہی ہے اقتدار پر قابض ہونے کی. تو اس وقت ایز آف وی اسپیک کس فارمولے پر وہ پہنچے ہیں اور کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے؟ مینڈیٹ چوری جو کی جا رہی ہے اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، طاقتوروں کے ایک بہت بڑے پلیئر نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور آپشنز ان کے لیے یوں لگ رہا ہے کہ محدود ہوتے جا رہے ہیں. جہانگیر ترین نے سیاست اور آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس ڈیولپمنٹ کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کے تناظر میں سمجھیے گا کہ عمران خان کے پاس جو پیغام پہنچا ہے، یعنی اس وقت طاقتور بھی دو آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں. ایک آپشن پی ڈی ایم 2.0 کا اور دوسرا عمران خان کے ساتھ رابطہ کاری دوبارہ استوار کرنے کا. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آئندہ 72 گھنٹے اہمیت اختیار کر چکے ہیں. اس سب کے اندر کس کا کیا رول ہوگا اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، ایک امیدوار لوٹا ہو چکا ہے اور وہ کوئی پریشر میں لوٹا نہیں ہوا. جو لاہور سے وسیم قادر ہے وہ بکا ہے اور اس حوالے سے کل میں ایک ایکسکلوزیو سٹوری آلریڈی کر چکا ہوں اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس کی پوری کہانی کیا ہے اور یہ شخص کون ہے، یہ کیا ہے، اس کا کیا ہسٹری رہی ہے، اسے پی ٹی آئی میں لایا کس طرح سے گیا، اور یہ سوال ظاہری بات ہے خان صاحب پوچھیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہے انہیں ڈیل پر مجبور کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اب یہ جو وسیم قادر ہے نا، میں اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان سے غداری کرنے والا جو وسیم قادر مریم نواز سے مل گیا جا کے، اس کے گھر کے باہر ہزاروں لوگ جو ہے حلقے کے وہ احتجاج کرنے پہنچے اور پرامن طریقے سے وہاں پر احتجاج جو ہے وہ حق ہے لوگوں کا کہ ان کے مینڈیٹ پر چوری. اب وہیں دوسری جانب مریم نواز کو الیکشن ہرایا ہے. ایک تو ایم پی اے کا الیکشن ہرایا ہے مہر شرافت نے، الیکشن مریم نواز کو ہرایا ہے لیکن مریم نواز کو جتا دیا گیا. پھر نیشنل اسمبلی میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کے حوالے سے میاں عباد فاروق کے بھائی میاں شہزاد فاروق جو ہے انہوں نے مریم کو شکست دی اور بعد میں نتائج بدل دیے گئے. اب میاں شہزاد فاروق اپنی سیٹ کے لیے بیسیکلی احتجاج کر رہے تھے جو آر او آفس کے سامنے، وہاں سے انہیں اریسٹ کر لیا گیا اور رات گئے یہ بھی خبر آئی ہے اور یہ میاں عباد فاروق کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے آئی ہے، ان کی اپنی فیملی کی طرف سے آئی ہے کہ مریم نواز میاں شہزاد فاروق سے خود ملنے تھانہ گڑھی شاہو پہنچی اور انہیں نامعلوم مقام منتقل کیا گیا ہے اور ڈیل کے لیے تھانے مریم نواز خود پہنچی ہے کہ یہ جو تم میری سیٹ جتائی گئی ہے اس کے مقابلے میں تم کلیم نہ کرو، اب اس بات کو بھول جاؤ اور بس لیگل بیٹل نہ لڑو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کس طرح سے انہیں جتایا گیا ہے اور یہ ان کی جو وکٹری ہے جو کہ انہیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے دی گئی، وہ وکٹری ان کی زیادہ عرصے تک، زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے. اب ایک طرف تو یہ ساری چیزیں وہی مریم نواز نے وسیم قادر کے ساتھ تصویر تو بنا دی ہے، مریم نواز پر بھی لان تان ہو رہی ہے. عامر متین صاحب ہیں سینئر صحافیوں نے لکھا کہ جھوٹا حلف اٹھاتے وسیم قادر پر تو لانت ہے ہی ہے، مگر مریم نواز کی پارلیمانی سیاست کی ابتدا اس گھٹیا حرکت سے نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کیچڑ کو ساتھ کھڑا کر کے فخریہ تصویر اتروانا شرمناک ہے. آئندہ وہ چیخ چیخ کر ووٹ کو عزت جیسے کسی دعوے کا پرچار کیسے کریں گی؟ یہ ٹرافی نہیں بلکہ شرم کا مقام ہے. جو ابتدا کیچڑ سے ہو اس کا انجام ہمیں پتا ہے. سنبھال کر رکھنا یہ تصویر جو مریم نواز کی وسیم قادر کے ساتھ ہے، اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے. اب ان کے اپنے بندے بھی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، نون لیگ کے جو ایم این ایز ہیں انہیں اٹھائے جانے کی بھی اطلاعات ہے. شہباز گل صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے 4 ایم این اے نظام کی طرف سے، نظام دین کی طرف سے اٹھا لیے گئے ہیں.
दबाव है, तशद्दुद है, पीटीआई छोड़ो और नून लीग ज्वाइन करो। नाउ दिस इज अ बिग क्लेम कि मैंडेट चोरी किया, मैंडेट चोरी करके भी जो काम नहीं हो सका, अब ये बेचारे अपने अपने काम कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। अब वो इरफान सिद्दीकी साहब इनका नैरेटिव बनाते हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है नून लीग को दोबारा अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाना पड़े, मुल्क के वसी तर मफाद में ये हो जाए वो हो जाए। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती और ना ही वो हुकूमत चल सकती है, पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम हो। अब ये जो इन्होंने क्लेम किया है, इससे इन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड ले आई है कि पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अब JUI, दीगर इत्तेहादी, MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब करीब आ रहे हैं, ये उन्हें लाया जा रहा है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अब जो जोड़ तोड़ चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। और इसमें एक जानिब तो मैंने आपको बताया था ना कि नून लीग जो है उसने एक ऑफर की थी, और नून लीग की ऑफर ये थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को वजारत आला, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें नायब वजीर आला जैसा कोई ओहदा दे दें। फिर 3 आईनी ओहदे जिनमें सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, वो पीपल्स पार्टी को ऑफर किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी स्टिल वजारत उज़्मा चाह रही है इस सब के अंदर, और पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, वजारत उज़्मा हमें दे दें, बाकी सब आप रख लें। अब यहाँ पर एक और खेल जो है, जो मैंने कल आपको बताया था कि आधा आधा कर लें जी टेन्योर। अब 2 और 3 साल के लिए वजारत उज़्मा जो है उसके फॉर्मूले पर भी इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। वैसे मुल्क के साथ खिलवाड़ है, और आधी आधी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा का फॉर्मूला आया है, और इसमें मौकफ ये अपनाया गया है कि जी ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो जो है उन्हें हम जरदारी ये कह रहे हैं कि हम उन्हें वजीर आजम बनवाना चाहते हैं। अब दोनों जमातों के दरमियान ये भी बात चल रही है कि जी आधी आधी मुद्दत के लिए बेसिकली वजीर आजम जो है एक 2 साल के लिए बन जाए, एक 3 साल के लिए बन जाए। 3 साल मुस्लिम लीग नवाज का, 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ठप्पा लगवा ले वजीर आजम का, मुल्क के साथ खिलवाड़ कर ले। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दाल अब ऐसे गलने वाली नहीं है। जो अवाम ने वोट दे दिया है ना इमरान खान को, और धांधला प्रो मैक्स इस मुल्क में होने के बावजूद भी इमरान अहमद खान न्याजी की सीटें अभी भी सबसे ज्यादा है। इमरान खान साहब जो है उन्हें इससे पहले भी एक ऑफर दी गई थी, इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से दी गई थी, क्योंकि पता था अवाम ने तो वोट इमरान खान को देने। ऑफर ये थी कि नंबर 1, आप बिल्कुल आपको हम छोड़ देते हैं, आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर देंगे आपके घर में, वहां पर आप नजर बंद रहे। 3, आपको हम कैंडिडेट्स दे देंगे आपकी पार्टी में से ही वजीर आजम के, एक को आप चुन लीजिएगा, अवाम ठंडी हो जाएगी कि जी इमरान खान का बनाया हुआ वजीर आजम है। 2-3 साल आप जरा खामोश रहे, हुकूमत साजी के मामलात से थोड़ा सा आप दूर रहे, उसके बाद फिर हम रिव्यू कर लेंगे। इमरान खान साहब ने इस ऑफर को लात मारी, का बिल्कुल भी नहीं, अवाम के मैंडेट पर बात करो। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ताकतवरों के लिए सरप्राइजेस उनके अपने लोगों की तरफ से आ रहे हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ताकतवर हलकों ने कोई किंग्स पार्टी बनाई और वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुई। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफी होने का फैसला किया, और उन्होंने IPP के अराकीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इंतखाबात में हिमायत की उनका शुक्रिया अदा करता हूं और कामयाबी पर अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद देता हूं। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें हार गए थे और ताकतवरों के एक किंग्स पार्टी के तौर पर आए, लेकिन इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अब इन्हें एक बात समझ लग गई है कि पाकिस्तान में जो ताकत का तवाजुन है ना वो बिगड़ चुका है। ये चीज आपने समझनी है कि पाकिस्तान में ताकत का तवाजुन बिगड़ चुका है। पाकिस्तान में एक और ताकतवर हल्का और एक और एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर हो चुकी है, और वो इस मुल्क की आवाम है जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया। नाउ दिस इज अ रियलिटी, इससे तो कोई दूसरी इसमें राय नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उनका आपको पता है कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया गया उनकी मर्जी के बरक्स। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में रखो, लेकिन उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया गया। ये सब कुछ क्योंकि नताइज इस तरह के आ रहे थे। अब यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं इमरान रियाज खान, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि कुछ दिनों में इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, मगर बहुत खामोशी से उन्हें बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब वहां नजरबंद रहेंगे, मुकम्मल आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन जाहिर बात है अपने घर में जरा खुली जगह पे होंगे। उनके लिए कुछ आसानियां सिस्टम जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है। ऑल्दो यहाँ पर इमरान खान साहब जो है उन्होंने ऐसी कोई आसानी नहीं मांगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेम आया है, जिस रात इमरान खान साहब इंतखाबात जीते थे उस दिन भी और अगले दिन भी हमने बताया था कि अडियाला जेल की सिक्योरिटी गैर मामूली तौर पर उसमें इजाफा कर दिया गया। इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बनी गाला की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, यानी खान साहब को वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कोई रिलीफ नहीं मांगा, और अब एक बहुत बड़ी और
तहलका खेज मुलाकात जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ रिपोर्ट्स गर्दिश की कि जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उन्हें भेजा गया इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उसमें तो कोई हकीकत नहीं है, वो तो हमने भी अपने सोर्सेज से कंफर्म किया। अब यहाँ पर एक खबर है और मैं जाती तौर पे ये चाहूंगा कि आईएसपीआर की तरफ से इसकी तस्दीक या तरदीद भी आ जाए। असद तूर साहब ने क्लेम किया है कि जो सीजीएस है, देखें एक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जो कि होते हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और ये बहुत अहम होता है, मतलब आर्मी चीफ के बाद जो सबसे ज्यादा ऑपरेशनल और तमाम तर चीजों को जो जीएचक्यू की अगर कोई देख रहा होता है, बड़ा कॉम्पिटेंट जनरल जो है उसे ही सीजीएस लगाया जाता है। और जो इस वक्त मौजूदा सीजीएस है ये साबका डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भी है, यानी मिलिट्री के सारे ऑपरेशंस ये देखते रहे हैं। फिर ये डीजी पर्सपेक्टिव सेल भी रहे हैं जीएचक्यू के, ये वो सेल है जिसने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। ये जीओसी आर्मर डिवीजन गुजरांवाला भी रहे हैं, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूदा जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, व्हेन ही वाज द कोर कमांडर गुजरांवाला, इनके वाले से ये बताया गया है कि ये उस वक्त उनके उधर ही जीओसी भी थे। तो सितंबर में ही वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और नवंबर में इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाया गया था। अब इनके हवाले से ये क्लेम आ रहा है, अब आई एम नॉट स्टिल श्योर क्योंकि मैंने बता दिया किसका क्लेम है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग clarification from the inter services public relations on this matter। असद तूर ने ये क्लेम किया है कि इनकी जी मीटिंग हुई है अडियाला के अंदर। चले इनकी मीटिंग हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंसेशंस जो है इनके मुताबिक वो ऑफर की गई है इमरान खान साहब को। नंबर वन, एक तो ये कि आपके लिए रिलैक्सेशंस पैदा की जाएंगी। नंबर टू, आपको केपी में गवर्नमेंट बनाने भी दी जाएगी और गवर्नमेंट करने भी दी जाएगी, क्योंकि एक थ्योरी तो ये भी थी कि केपी में जैसे ही पीटीआई गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो वहां पे गवर्नर राज लग जाएगा, वहां पे पीटीआई को रूल नहीं करने दिया जाएगा। तो नंबर वन ये है कि आपके लिए रिलैक्सेशंस होंगी। नंबर टू, खैबर पख्तूनख्वा में आपको गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करने दी जाएगी, खुल के हुकूमत करने दी जाएगी। विफाक में आपका जो इस वक्त का मैंडेट है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसका एहतराम किया जाएगा, लेकिन आपको उसके बदले में हुकूमत चलने की गारंटी देनी होगी कि आप हुकूमत चलने देंगे, रियासत का निजाम चलने देंगे, मुल्क आगे चल सके, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हम पूरी कर सके, इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, फाइनेंशियल बॉडीज, उनके साथ बहुत सी कमिटमेंट्स हैं, और मफाहमत के लिए फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट आगे आप आए। अब इस पर इमरान खान साहब का जो जवाब था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने अपने केसेस पर कोई बात नहीं की, अपनी जात के लिए कोई कंसेशन नहीं मांगी, ना ही बनी गाला शिफ्ट करवाने की बात की, ना जेल से बाहर जाने की बात की। इस बात पे तो खान आया ही नहीं ना कि मेरे लिए क्या रिलैक्सेशन होनी चाहिए। एक चीज ये इमरान खान साहब का दावा आया कि मेरी रिगिंग से जो छीनी गई सीट्स हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 150 प्लस सीट्स बन रही थी, जो कि 90 पे कट डाउन कर दी गई, वो वापस कर दी जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, फॉर्म 45 के मुताबिक 30-40 सीटें हैं, रिकाउंट अगर होता है और मुस्तरद शुदा वोटों के ऊपर फिर से चीजें होती हैं तो 50 से ऊपर सीटें, तो मिनिमम 50 से ऊपर सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। तो खान साहब का पहला मुतालबा था कि एक तो यह है कि हमारा मैंडेट है वो हमें दिया जाए और हमारी जो छीनी गई सीट्स हैं वो हमें वापस की जाए। नंबर टू, मजीद इंटरफेरेंस जो है वो पाकिस्तान के मामलात में बंद की जाए, हमारी जमात को तोड़ने का सिलसिला खत्म किया जाए, बाकी जमातों को जोड़ने का सिलसिला बंद किया जाए। इमरान खान साहब को इसमें जो ये क्लेम कर रहे हैं वो ये कहा गया कि लीगल फॉर्म्स मौजूद हैं, आपको लगता है अगर रिगिंग हुई है आप अदालतों में जाएं, आप अपनी सीटें वापस लेने के लिए अदालतों से रुजू करेंगे, हमारी साइड से ताकतवरों की साइड से कोई इसके अंदर वो नहीं होगी मुदाखलत कि हम अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो, ये हम आपको कह रहे हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो है उन्हें इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है, एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग। मैं तरीन साहब वाली जो पार्टी छोड़ना है उस पर तो बात करूंगा अभी डिटेल में भी अगले व्लॉग में, लेकिन इस वक्त ये अगर इन चीजों को देख लिया जाए तो एक चीज ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। इलेक्शन से पहले ही वाज इन अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में उन्हें पता लग गया कि दैट द पीपल हैव वोटेड फॉर मी। और एक और चीज भी है कि अगर आज पीडीएम 2.0 इस मुल्क पे आ जाती है, इमरान खान का वोट बैंक तो बढ़ेगा। वोट बैंक सिर्फ गवर्नमेंट करके खत्म हो सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये कम हो सकता है। फिर लोगों को एतराज होता है ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है वो सब कुछ उल्टा गले तो पड़ा है और अवाम ने तो दिखा दिया है, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो मीटिंग का क्लेम है, इसमें एक चीज मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि खान साहब के साथ मीटिंग हुई है या नहीं, लेकिन खान साहब के यही मुतालबात है, दिस इज कंफर्म। अब ये मीटिंग और इस मीटिंग के खदोखाल जिन शख्सियत के साथ हुई, जो शख्सियत अडियाला जेल गई, खान साहब से मीटिंग की, ये सब कुछ ऑब्वियसली दूसरी साइड का मौकफ इसके ऊपर हम लेने की कोशिश भी करेंगे, और अगर आता है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इस पे अगर जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो अगर कोई अपना मौकफ देती है तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके सामने वो भी रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान।